Good morning to all of you. So today we are going to start a new topic, that is gastroenteritis. So it is very similar to the topic of diarrhea. In diarrhea we have learned all the things in detail. So this topic in gastroenteritis, one of the symptom is diarrhea. So I will not be going into detail of the diarrheal part, but we will be concentrating more on a general management of gastroenteritis. Okay. Now, I would like to start this topic with a case scenario so that you can understand what you mean by gastroenteritis. Delia is worried of a baby girl who is having loose watery stool for 2 days. On the third day, the baby started vomiting. Okay, so you have seen the history. There is a history of diarrhea for two days. On the third day, the baby has started vomiting. Delia rushed her baby to the emergency department, where she was diagnosed as gastroenteritis. So now you can understand the symptoms. So if you have a combination of diarrhea and vomiting, then it is gastroenteritis. Okay. Now in some books they have mentioned infectious diarrhea is commonly referred to as gastroenteritis. So whenever you have infectious diarrhea, this is usually accompanied by vomiting also. Okay. So infectious diarrhea is commonly referred as gastroenteritis, and it is a benign disease, but the problem is it is a major cause of morbidity and mortality for the children, and it accounts for 1.3 million deaths annually in children younger than 5 years, or roughly of 15% of all child deaths. इससे आपको क्या समझ में आ रहा? ठीक है, इट्स अ benign disease, but the problem is बहुत सारे बच्चे इससे बीमार भी होते हैं और डेथ रेट भी. एंड व्हाट इज द डेथ रेट? इट इज़ 1.34 मिलियन डेथ्स एनुअली. एक साल में 1.3 मिलियन डेथ्स इज ड्यू टू गैस्ट्रोएंटेरिटिस. किन बच्चों में? जिसका एज लेस देन 5 ईयर्स है. और जितने बच्चे मर रहे हैं उसमें से 15% इज ड्यू टू गैस्ट्रोएंटेरिटिस. ओके. सो डायरिया में बी माइल्ड accompanied by slight dehydration, or it may be extremely severe requiring prompt and effective treatment. ठीक है. So gastroenteritis में you may have situation where the disease pattern is mild, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, but it can be severe also. So when it gets severe, this causes significant mortality. ठीक है. Now what is the definition? It is defined as inflammation of the stomach and intestinal tract that causes vomiting, diarrhea, or both. Okay. So this is the definition. So there is inflammation of the stomach, not only of the stomach but also of the intestinal tract, or this causes vomiting, diarrhea, or both. ठीक है. तो what is gastroenteritis? There is inflammation of the stomach, there is inflammation of the GI tract. तो इससे क्या हो सकता है? vomiting हो सकता है, diarrhea हो सकता है, और दोनों हो सकता है. ओके. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन characterized especially by nausea, vomiting, diarrhea, and cramps. Can you see this picture? So this baby is having cramps. So this is another definition where it is where you have nausea. Nausea का मतलब आपको पता है, feeling to vomit, vomiting, diarrhea, as well as cramps. Now this is the incidence. Worldwide, inadequate treatment of gastroenteritis kills 5 to 8 million people per year. ठीक है. So if you take example of the overall deaths of people, we are not in this line. हम लोग क्या देख रहे हैं? People, 5 to 8 million people का deaths is due to gastroenteritis. Okay. And why? Because the treatment was not so good. And children under 5 children, it is a leading cause of death. Okay. ये हम लोग just previous slide में भी हमने देखा था. Okay. Now what is the statistics and incidence? Gastroenteritis कहाँ पे ज़्यादा होता है? In those areas which are lacking adequate clean water and sanitation facility. ठीक है. gastroenteritis उस जगहों में ज़्यादा होगा जहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं है. And second is sanitation, where the cleanliness is not maintained. So in such condition you have gastroenteritis. And children in US have 1.3 to 2.3 episodes of diarrhea each year.
हर साल में, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, ओके, 1.3 to 2.3 एपिसोड्स ऑफ डायरिया ईच ईयर। एक बच्चे को हर साल में क्या कितना 1.3 से लेके 2.3 एपिसोड्स ऑफ डायरिया, इट इज एवरी ईयर इट इज ऑकरिंग, ओके, सो इतना कॉमन है। नेक्स्ट, ओवरऑल गैस्ट्रोएंटेरिटिस अकाउंट्स फॉर 1.5 million आउटपेशेंट विजिट, 2,20,000 हॉस्पिटलाइजेशन एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मोर देन 2 billion ईच ईयर इन यूएस अलोन। ये यूएस का फिगर्स है, 1.5 million ओपीडी विजिट्स, ठीक है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस से इतना मिलियन ओपीडी विजिट्स है। हॉस्पिटल में एडमिट कितना हो रहा है, 2,20,000, और इससे $2 million का खर्चा आ रहा है। सो दैट दिस इज अ ह्यूज कॉस्ट विच इज कॉस्ट ड्यू टू गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ठीक है, तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है फॉर गैस्ट्रोएंटेरिटिस। Now worldwide, children younger than 5 years have an estimated 1.7 billion episodes of diarrhea each year, जिसमें 124 million clinic visit, 9 million hot, वो previous slide का that was US का। worldwide, world में कितना है, 1.7 billion episodes of diarrhea each year, एक साल में 1.7 billion, और 124 million clinic visits है, 9 million hospitalization है, 1.34 million deaths है, with more than 98% of these occurring in the developing world, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें से जितने डेथ्स हो रहे हैं उसमें से 98% कहाँ पर है, डेवलपिंग कंट्रीज में, ओके, सो इंडिया कम्स अंडर डेवलपिंग कंट्री। सो ऑल्दो द प्रेवलेंस ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस हैज चेंज्ड लिटिल ओवर द पास्ट 4 decades, mortality has declined sharply from 4.6 million in 1970s to 3 million in 1980s and 2.5 million in 1990s, ठीक है। प्रिवलेंस में ज़्यादा फर्क नहीं। प्रिवलेंस किसको बोलते हैं, प्रिवलेंस कितना केसेस एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में कितना केसेस है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिवलेंस, ओके। सो वो प्रिवलेंस पिछले 40 ईयर्स में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, पर क्या चेंज हुआ है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज एंड हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है, क्या है, फर्स्ट इज कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ऐसे जगह जहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं है, स्वच्छ खाना नहीं है, कि चांसेस ऑफ गैस्ट्रोएंटेरिटिस आर मोर। पुअर हाइजीन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एक चीज़ हमको दिमाग में रखना है, अगर बच्चे को मैल न्यूट्रिशन है तो उसका कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन दैट विल बी लेस, एंड वंस द चाइल्ड टेक्स सिंपल मे बी विथ अनवॉश्ड हैंड ही टेक्स फूड, ही विल सफर फ्रॉम गैस्ट्रोएंटेरिटिस। क्यों, क्योंकि बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं है। पोर सैनिटेशन, फिर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन इन्फेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्यून डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स। इम्यून डेफिशिएंट मतलब ऐसे लोग जिसको बीमारी से फाइट करने का कैपेसिटी कम है, दैट इज कॉल्ड इम्यून डेफिशिएंस। सो इम्यून डेफिशिएंट कौन हो सकते हैं, दे मे बी दोज चिल्ड्रन हु आर ऑन स्टेरॉइड थेरेपी। स्टेरॉइड थेरेपी फॉर एग्जाम्पल किडनी डिसऑर्डर्स में हम लोग स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, ओके, और या तो फिर और इफ द चाइल्ड इज हैविंग इज अ केस ऑफ कैंसर जहाँ पे हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, तो ऐसे बच्चों, या और मे बी द चाइल्ड इज अ केस ऑफ HIV, ओके। सो ये सब कंडीशन में दीज आर दोज कॉमन कंडीशंस इन विच द चाइल्ड इज हैविंग इम्यून डेफिशिएंसी। मैल न्यूट्रिशन, फिर ट्रैवल टू एंडेमिक एरिया। ट्रैवल टू एंडेमिक एरिया मतलब जिस जगह में गैस्ट्रोएंटेरिटिस कॉमन है उस जगह में somebody has traveled, so this gastroenteritis will be there. Lack of breastfeeding, we know that breastfeeding का हमने क्लासेस शुरू में काफ़ी पहले लिया था, we have studied the advantages. So one of the major advantages of breastfeeding is the capacity to fight against infection, because breast milk में anti-infective factors है जिससे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलता है, ठीक है। एक्सपोजर टू अनसैनिटरी कंडीशंस और पुअर मटेरियल एजुकेशन, अगर माँ का एजुकेशन कम है देन उसका वो अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए पुअर मैटरनल एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, ओके। नाउ दीज आर द कॉजेज ऑफ डायरिया जस्ट इन वन लॉक, ओके। ट्रैवल टू डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, सो डेवलपिंग कंट्रीज हमने देखा 98% केसेस वहाँ पर है। स्ट्रेस कैन बी कॉज, बैक्टीरिया से हो सकता है, सो कैबेज, हॉट पेपर्स, सॉसेजेस कैन कॉज दिस, एंटासिड से हो सकता है, मेडिसिन से हो सकता है। देन इज शुगर फ्री गम, ओके, विच कंटेन सॉर्बिटॉल, सो सॉर्बिटॉल से भी
गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का चांसेस है. Now these are the causes. Okay, so first is infectious agents. So what are the infectious agents? Infectious agents may be Salmonella, E. coli, dysentery bacilli and various viruses. सबसे common उसमें रोटावायरस. ठीक है. Infectious agents कौन कौन सा है? Salmonella है. Salmonella we know that this also causes Salmonella typhi causes. ये group का नाम है. ठीक है. So Salmonella group. नेक्स्ट इज ई कोलाई, डिसेंट्री बैसिलाई. डिसेंट्री मतलब ऐसा लूज मोशन जिसमें ब्लड भी जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्री. ओके. नेक्स्ट एंड वायरस किसमें कौन सा? रोटा वायरस इज मोस्ट कॉमन. सेकेंड इज कंटामिनेटेड फूड. सो कंटामिनेटेड विथ फूड और ह्यूमन और एनिमल फीकल वेस्ट थ्रू ओरल फीकल रूट. ठीक है. ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. ओरल फीकल रूट मतलब सपोज किसी व्यक्ति को डायरिया है, तो अगर उसका सपोज वो पर्सन ने ओपन डेफिकेशन किया. ओपन डेफिकेशन मतलब फील्ड्स में किया. ठीक है. फील्ड में किसी ने कुछ उगाया, तो फीकल मैटर से जो रोटा वायरस है या फिर ये जितना है साल्मोनेला, ई कोलाई, सो दिस विल गो टू वॉट एवर फूड मटेरियल्स देयर. और अगर उसको फूड को बिना वॉश किए somebody is taking और बर्तन ठीक से साफ नहीं किया हो, ऐसा सब इश्यूज होगा, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज ओरोफिकल रूट. तो जिससे ओरोफिकल रूट आप समझ गए हैं, मैं उम्मीद कर रही. आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. ओरल फीकल रूट मतलब somebody हैज डायरिया. ठीक है. उसके बॉडी में क्या है? रोटा वायरस है. रोटा वायरस उसने स्टूल के साथ बाहर, फीकल मैटर के साथ बाहर आ गया. ठीक है. ये फीकल मैटर अगर कंटेमिनेट किया, कंटेमिनेट मतलब हो सकता है उसका सेप्टिक टैंक ठीक से नहीं बना है, या ओपन डेफिकेशन किया, या बहुत पास पास घर है, या लीकेज है कहीं, और दिस सीवेज कंटेमिनेशन है, तो ये सब कारण से क्या होगा? जो कीटाणु हैं वो फूड मटेरियल्स तक चली जाएगा. जो खेतों में उगाने वाले फूड मटेरियल्स, वो फूड मटेरियल्स को अगर सैनिटाइज ठीक से नहीं किया है, हैंड वॉशिंग ठीक से नहीं किया, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया, नेल्स को नहीं काटा, ऑल दिस कैन कॉज सो डायरिया. तो क्या है? ओरोफिकल रूट मतलब किसी ने खाया, किसी एंड द वायरस कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू फीकल रूट एंड एंटर्स इनसाइड अनदर पर्सन थ्रू ओरल रूट. सो दैट इज कॉल्ड एज ओरोफिकल रूट. ओके. फिर है अनसैनिटरी वाटर एंड एनवायरमेंट, इस जगह में जहाँ पे ये सब का कमी है. नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक थेरेपी में ऑल्सो कॉज डायरिया. आपने एमॉक्सिसिलिन का नाम सुना होगा. एमॉक्सिसिलिन से इट्स वेरी कॉमन टू हैव डायरिया. सो समटाइम्स एंटीबायोटिक थेरेपी कैन ऑल्सो कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस. सो दीज आर दी साल्मोनेला, कैम्पेलोबैक्टर, ये सब जो है, दीज आर दी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ई कोलाई ऐसा दिखता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऐसा दिखता है. दीज आर दी कॉलोनीज. ठीक है. तो ये हम लोग जो कल्चर करते हैं, ये उसका पेट्री डिश है. नाउ दिस इज ए पैथोफिजियोलॉजी. इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. ठीक है. पैथोजेंस कैसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आया? क्योंकि जो भी ओरोफिकल रूट से फैलता है, ठीक है, जो फीसिस से निकला, अभी ओरल रूट से होते हुए अभी कहाँ पे आ गया? इट हैज कम टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. ठीक है. नाउ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में देयर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन एंड सिक्रेशन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन्स. ठीक है. जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस किसको बोलते हैं? सो दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु. ठीक है. सो दे मल्टीप्लाई. ये बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु मतलब अभी हमने लिस्ट पढ़ा था, साल्मोनेला, देन दिस रोटा वायरस. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैथोजेंस. तो पैथोजेंस क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. एंड वंस दे मल्टीप्लाई, इंक्रीज इन साइज, सो व्हाट दे विल डू, उनके बॉडी से एंटेरोटॉक्सिन्स निकलेगा. सो दीज एंटेरोटॉक्सिन्स विल कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. ठीक है. ये 3 स्टेप आपको समझ में आए. सबसे पहले पैथोजेंस आर एंटरिंग इनसाइड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. सेकेंड इज ये मल्टीप्लाई कर रहा है और एंटेरोटॉक्सिन्स सिक्रीट हो रहा है. नेक्स्ट इज देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन हो गया. सो व्हाट
what is the problem? Enterotoxin causes fluid and electrolyte changes. Enterotoxin से जो है उससे fluid और electrolyte changes होगा. So this increases secretion of fluid into intestine and lower absorption of nutrients. आपको बात समझ में आ रहा है? जो enterotoxins है इससे fluid और जो GI सिस्टम है उसमें fluid का मात्रा बढ़ रहा है. So this causes massive diarrhea and vomiting. ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी इज क्लियर. फर्स्ट इज पैथोजन एंटर्स इनसाइड द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा. कैसे आया? थ्रू फूड. फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में मल्टीप्लाई किया. थर्ड और मल्टीप्लाई किया एंड देयर इज रिलीज ऑफ एंटेरोटॉक्सिन. एंटेरोटॉक्सिन का काम क्या है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में इन्फ्लेमेशन करना. इन्फ्लेमेशन करेगा और साथ में एंटेरोटॉक्सिन से दो चीज होगा. इट विल कॉज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का क्या चेंज है? देयर इज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड इनटू इंटेस्टाइन. फ्लूइड का मात्रा बढ़ गया और एब्जॉर्प्शन का मात्रा कम हो गया. तो इससे क्या होगा? देयर विल बी मैसिव डायरिया एंड वॉमिटिंग. सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है. आप ये देख रहे हैं. कैन यू सी दिस? दिस इज द नॉर्मल द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा. ठीक है. एंड दिस इज इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा. ठीक है. तो जीआई सिस्टम में the intestinal mucosa में these are the changes which occurs in gastroenteritis, and these are the Campylobacter, rotavirus, E. coli, Norwalk virus. So these are the different viruses which are responsible for gastroenteritis. So these intestinal lining में क्या आ रहा? ये these viruses are there. That is why these inflammatory changes are there in the intestinal mucosa. Now what are the signs and symptoms? Diarrhea, vomiting, abdominal pain, fever, dehydration, tenesmus. What is tenesmus? Feeling of incomplete defecation. है ना? क्या मतलब होता है? The child goes to the toilet and passes stool, but still the child feels कि as bowel ठीक से empty नहीं हुआ है. That is called as tenesmus. Okay. Then there is reduced appetite because of vomiting as well as diarrhea. Now what are the clinical manifestations? Clinical manifestations are diarrhea. We know what is diarrhea now. Okay. Frequent watery stools are more consistent with viral gastroenteritis, while stool with blood or mucosa are indicative of bacterial pathogen. ठीक है. So two things are there. पहला है frequent watery diarrhea. उसमें blood नहीं है. बार बार लूज मोशंस हो रहा है. There is no blood. तो ये किसमें होता है? वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस. रोटावायरस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन. इट इज नोटोरियस फॉर गैस्ट्रोएंटेराइटिस. ठीक है. तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कैसे पता करेंगे? लूज मोशन होगा. इट विल बी वाटरी एंड इट विल बी फ्रीक्वेंट. बट इफ इट इज विथ ब्लड टिंज्ड, ब्लड भी साथ में आ रहा है, देन इट इज ऑफ अ बैक्टीरियल पैथोजन. ठीक है. जैसे स्टेफिलोकोकस, कंपाइलोबैक्टर, ई कोलाई. सो दीज आर ऑल बैक्टीरियाज. ठीक है. ये रोटावायरस वायरस. तो अगर सिर्फ वायरस के कारण है, इट विल कॉज ओनली लूज मोशन. बट इफ इट इज बैक्टीरियल, तो लूज मोशन के साथ क्या रहेगा? इट विल कंटेन ब्लड. ठीक है. नाउ विथ वॉमिटिंग, व्हेन सिम्टम्स ऑफ वॉमिटिंग प्रीडोमिनेट मतलब लूज मोशन कम और वॉमिटिंग ज़्यादा, अगर ऐसा है देन उसको क्या हो सकता है? GERD. क्या है? गैस्ट्रो esophageal reflux disease, or it can be diabetic ketoacidosis, it can be pyloric stenosis, it can be acute abdomen, or it can be UTI. तो ये सब हमको रूल आउट करना पड़ता है कि कहीं ये कारण से वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है. ठीक है. सो वॉमिटिंग सिर्फ गैस्ट्रोएंटेरिटिस में नहीं होता. वॉमिटिंग कैन ऑकर इन GERD, दैट इज गैस्ट्रो esophageal reflux disease. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो सकता है. पाइलोरिक स्टेनोसिस हम लोग ने क्लास पहले लिया है. आई हैव टेकन अ क्लास फॉर यू फॉर पाइलोरिक स्टेनोसिस. तो हमने उसमें पढ़ा था प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. ओके. सो देन एक्यूट एब्डोमेन और UTI. सो दीज आर दी वी हैव टू रूल आउट कहीं ये प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज डिसयूरिया. डिसयूरिया मतलब डिफिकल्टी. ओके. सो डिटरमाइन इफ देयर इज एन इंक्रीज or decrease in frequency of urination as measured by number of wet diapers, time since last urination, current concentration of urine and presence of dysuria. Dysuria मतलब जैसे बच्चा यूरिन पास करेगा और स्टूल पास करेगा, यूरिन पास करेगा, the child will cry. Okay. So this indicates, because normal urination is a painless process, but if it is dysuria, whenever the child passes urine,
द चाइल्ड विल क्राई। ओके, तो हमको क्या क्या देखना है, व्हाट इज देयर इंक्रीज और डिक्रीज इन यूरिनेशन, कैसे पता चलेगा, यू हैव टू सी दी वेट डाइपर्स, जो डाइपर्स पहनाते हैं उसमें से कितना गीला हुआ है, when was the last time the child urinated, कौन सा कलर का था, and we also try to find out the presence of dysuria. Okay, so these are the sign and symptoms of gastroenteritis. Okay, because of dehydration there is sunken eyes and cheek, skin turgidity is less, there will be sunken fontanelle, few or no tears, there will be dry mouth, so these are all sunken abdomen. So these are all the signs and symptoms of dehydration which causes due to vomiting and diarrhea. Okay, now what are the other clinical manifestation? Abdominal pain that precedes vomiting and diarrhea. Pain that precedes का क्या मतलब है, vomiting और diarrhea होने के पहले पेट दर्द होगा, so that is called as pain that precedes vomiting and diarrhea. So this अगर ऐसा है, so is more likely to be due to abdominal pathology other than gastroenteritis. ठीक है, अगर बच्चा बोल रहा है कि पेट दर्द हुआ उसके बाद द चाइल्ड हैज वॉमिटेड और द चाइल्ड इज हैविंग डायरिया, उसका मतलब उसका कुछ एब्डोमिनल पैथोलॉजी है, सो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. और द चाइल्ड में हैव इन्फेक्शन, कैसे पता चलेगा, द चाइल्ड विल हैव फीवर, चिल्स, माइल्जिया मतलब मसल पेन, रैश, राइनोरिया दैट इज रनिंग नोज, सोर थ्रोट, कफ and known immunocompromised status. Known immunocompromised status मतलब चाइल्ड इज ऑलरेडी अ केस ऑफ ल्यूकीमिया, या तो कोई कैंसर का केस है, या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस है, या तो HIV का पेशेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एंड इट इज नोन, अगर पहले से पता है. सो दीज आर सो ऐसे लोग को द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर देयर. हाउ टू नो, क्योंकि ऐसे बच्चों को द चाइल्ड विल हैव फीवर, चिल्स, मसल पेन, रैश, राइनोरिया, sore throat, cough, and there are chances of a known immunocompromised status. Immunocompromised मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है. Now is assessment and diagnostic finding. ठीक है, क्या है assessment? A vast variety of children presenting with acute gastroenteritis do not require serum or urine test, as they are unlikely to be helpful in determining the degree of dehydration. ठीक है, urine test, serum test gastroenteritis में करने की जरूरत नहीं. We have to focus more on stool examination. ठीक है, stool examination से क्या पता चलेगा, if you have a culture and sensitivity of the stool, तो इससे हमको पता चलेगा कौन से ऑर्गेनिज्म है, कैम्पेलोबैक्टर है कि रोटावायरस है कि सैल्मोनेला है. So this we can able to find out. Now is what is the medical management? ORS. Okay, ORS के बारे में हम I have taken class on ORS earlier, so I don't want to repeat the same thing. So WHO and European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, ये सब लोग क्या रिकमेंड करते हैं, ORS. ठीक है, कब कितना देना डायरिया के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग नाउ. ओके, फिर है नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग फॉर चिल्ड्रन हु डू नॉट टॉलरेट ORS, तो हमको क्या देना पड़ेगा, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग. ठीक है, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब जाल डालकर फिर हमको देना पड़ेगा. ओके, IV ड्रिप वी हैव स्टडीड इन डिहाइड्रेशन के IV ड्रिप आपको स्टार्ट करना है. ठीक है, बोलस 20 to 30 ml फॉर 30-60 मिनट्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, डोंट वांट टू रिपीट बिकॉज डायरिया में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, देन डाइट इन चिल्ड्रन, in general children with gastroenteritis should return to normal diet as rapidly as possible. ठीक है, जितना जल्दी हो सके नॉर्मल डाइट में आना है. अर्ली फीडिंग रिड्यूसेस इलनेस ड्यूरेशन एंड इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल आउटकम. क्यों हम जल्दी खिलाना चाह रहे हैं, इससे दी डेज जितना लग रहा वो कम हो जाएगा, देन न्यूट्रिशनल आउटकम भी मतलब दी चाइल्ड विल हैव अ बेटर न्यूट्रिशन स्टेटस. तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके नॉर्मल डाइट में child has to return back. Okay, now what is the pharmacological management? ठीक है, तो अभी हमारे पास रोटा वायरस वैक्सीन है. ओके, वो ओरली खाते हैं. ओके, सो हम लोग ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब क्या करना है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो मैं यहाँ पे रिपीट करना नहीं चाहती. तो नाउ वी हैव रोटा वायरस विच इज लाइव एटीन्यूएटेड वायरस, और उसको हम ओरली देते हैं. ठीक है, फिर उसको छोड़कर मेट्रोनिडाजोल है जिसको हम फ्लैजिल के नाम से जानते हैं. ठीक है, इट्स वेरी कॉमन, आपने वार्ड में इसको भी देखा होगा. सो दिस इज
the choice of treatment for mild and moderate cases of C. difficile colitis. ठीक है, तो अगर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लैजिल आपने देखा होगा, अगर सर्जिकल वार्ड है तो वहाँ भी फ्लैजिल चलता है. वी गिव IV 100 ml 8 hourly. एडल्ट्स को हम देते हैं, बच्चों को डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द चाइल्ड फ्लैजिल इज गिवन. ठीक है. देन एंटीइमेटिक्स. एंटीइमेटिक्स मतलब वॉमिटिंग को कंट्रोल करने का मेडिसिन. ओके. सो 7 ट्रायल्स में क्या पता चल रहा है, दैट ओरल ऑन्डेस्टेरॉन, मतलब ऑन्डेम आपने टैबलेट देखा होगा. सो दिस रिड्यूसेस वॉमिटिंग एंड द नीड फॉर IV डिहाइड्रेशन. ठीक है. तो ऑन्डेम इज वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड एंटीमेटिक. वॉमिटिंग है तो हम ऑन्डेम देते हैं. ठीक है. सो ओरली ऑल्सो इट इज गिवन. वी हैव इंजेक्टेबल डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, वो हम डिसाइड करेंगे. तो ऑन्डेम देने से फायदा क्या, वॉमिटिंग भी कम होता है एंड IV लगाने का जो ज़रूरत है दैट ऑल्सो इज रिड्यूस्ड. ठीक है. हॉस्पिटल एडमिशन करने का भी कम है. IV ऑन्डेम एंड मेटाक्लोप्रोमाइड. ठीक है. रिड्यूस द नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग and hospital admission, and this dimenhydrinate suppository reduce the duration of vomiting. Suppository आपने देखा होगा, suppository is nothing but we have a medicine which is called as dimenhydrinate. So what we do is we introduce this into the anus. Okay. सो दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ वॉमिटिंग. तो ये सब स्टडीज़ का स्टैटिस्टिक्स है. तो मोस्ट कॉमन हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ ऑन्डेम. सो दैट इज स्टार्टेड एज ओरली. सपोज इफ द चाइल्ड इज हैविंग सीवियर वॉमिटिंग देन वी गिव इंजेक्टेबल. ओके. नाउ व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, वी हैव टू असेस द स्टूल कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने बार हुआ, कैसे हुआ, ब्लड था नहीं था. ठीक है. ऑल दिस थिंग्स, व्हाट वाज द कलर, व्हाट वाज द स्मेल, all these things has to be assessed. So we have to assess the stool characteristics. Okay. And we have to assess for vomiting. Vomiting में क्या क्या पूछना है, कितने बार हुआ, nausea था नहीं था, all these things we have to ask. Then assess for presence of illness. ठीक है. और किसी को कोई तबीयत खराब है कि नहीं, we need to ask about fever because we have studied कि कई बार it is due to infection. Okay. सो इन्फेक्शन अगर होगा तो फीवर और अदर साइंस ऑफ सिम्टम्स रहेगा. सो वी नीड टू एसेस. देन फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में वी नीड टू एसेस फॉर डिहाइड्रेशन. उसके साथ में एस्कोरिएटेड डायपर एरिया. एस्कोरेशन मतलब स्किन का ऊपर का लेयर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड एज एस्कोरिएशन. फिर टेम्परेचर देखना, कहीं फीवर है, अगर इफ इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन देन फीवर माइट बी देयर. एंटीरियर फॉन्टेनियर माइट बी डिप्रेस्ड. अपाइकल पल्स रेट जो हम स्टेथो से सुनते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. ओके. और द चाइल्ड विल बी इरिटेबल, विल बी लेथार्जिक, वॉमिटिंग, यूरिन, लिप्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, आईज, और भी कुछ अगर फिजिकल साइंस होगा तो दैट ऑल नीड्स टू बी चेक्ड. ठीक है. नाउ दीज आर द नर्सिंग डायग्नोसिस. रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट सेकेंडरी डिफेंसेस और इनसफिशिएंट नॉलेज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पैथोजन. Impaired skin integrity related to constant pressure, presence of diarrheal stool. ठीक है. That deficient fluid volume related to diarrheal stools. Imbalanced nutrition less than body requirement related to malabsorption of nutrients. Hyperthermia related to dehydration. A risk for delayed development related to decreased sucking when the child is kept nil orally. Okay. So these are the nursing diagnosis. Okay. Nursing care plan. The major goals are control of diarrhea, minimize the risk for infection, maintain good skin condition, improve hydration, nutritional intake, then satisfy the sucking needs of the child and eliminate the risk of infection transmission. ठीक है. So these are the areas जो हम लोग ने diarrhea में we have all studied this aspect in detail. So I am not going into the detail in this time. Okay. So these are the nursing intervention, reduce the infection transmission. कैसे? All caregivers must wear gowns, gloves which are used for handling articles contaminated with feces. जितने caregivers हैं, they should wear gloves and gowns, especially all articles जिसमें feces लगा हुआ है. ठीक है. Then place contaminated linen clothing in specially marked containers to be processed according to facility policy. ठीक है. हॉस्पिटल पॉलिसी के हिसाब से जो भी contaminated linens है
क्लोथिंग है उसको बायोमेडिकल पॉलिसी के हिसाब से यू हैव टू डू दिस। दैट विजिटर्स आर लिमिटेड, नहीं तो इससे और फैलने का चांसेस है, ठीक है। टीच फैमिली केयर गिवर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्टिक नेक्टिक, ऑब्जर्व देम, एंड गुड हैंड वॉशिंग हैज टू बी स्ट्रेस, ठीक है। प्रमोट स्किन इंटीग्रिटी, स्किन एस्कोरेशन प्रिवेंट करने के लिए जब भी द चाइल्ड पासेस लूज मोशन the buttocks has to be cleaned very nicely, ठीक है, and clean those areas frequently and apply a soothing protective preparation जिसमें lanolin A या D ointment है वो करना है। then change diapers as quickly as possible, बहुत देर after passing stool should not wait for a long period of time, नहीं तो इससे escalation और बढ़ जाएगा। placing disposable pads under the infant, ठीक है, and next to facilitate easy and frequent changing, okay। So these are the things we do for to reduce the skin escoriation. फिर है prevent dehydration. Carefully count diapers and weigh them to determine the infant's output, ठीक है। हम लोग डायपर का वेट लेकर पता कर सकते हैं पहले कितना था और स्टूल पास करने के बाद कितना वेट है। सो दिस विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि कितना फ्लूइड लॉस हुआ। देन मेजर ईच वॉइडिंग इन ओल्डर चाइल्ड, ठीक है। स्टूल एंड यूरिन, ये सब हम लोग एसेस कर सकते हैं बाय टेकिंग द वेट ऑफ द डायपर। डॉक्यूमेंट द नंबर एंड कैरेक्टर, नंबर मतलब कितने बार हुआ, कैरेक्टर मतलब लूज मोशन था, ब्लड था, पानी था, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू नो। सेम थिंग फॉर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में कितने बार हुआ, प्रोजेक्टाइल था कि नहीं था, कि नॉर्मल वॉमिटिंग था, फूड मटेरियल था, फ्लूइड था, कितने बार हुआ, all these things we need to assess. Then we have to maintain the body temperature. So monitor the vital signs at least 2 hours, especially if the fever is there. Follow appropriate procedure and for fever reduction, and we have to give antipyretics and antibiotics, okay. To maintain adequate nutrition, we have to weigh the child on the same scale every day. Take measurements early in the morning before morning feeding so that you can know the actual weight. Monitor the intake output. Good oral hygiene. When oral fluids are started, then we need to give ORS, and after the child tolerates the solution, half strength formula may be introduced. मतलब जो भी बेबी का फीडिंग चल रहा था, सपोज इफ इट इज जितना हम लोग घोलते हैं, सपोज इफ इट इज अ फॉर्मूला फीड, ठीक है, हाफ स्ट्रेंथ मतलब पानी को डबल करके डालना, दैट इज कॉल्ड एज हाफ स्ट्रेंथ फार्मूला, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज इवैल्यूएशन, कैसे पता चलेगा द चाइल्ड इज गेटिंग बेटर, इफ द डायरिया इज कंट्रोल, देयर इज मिनिमाइज्ड रिस्क फॉर इन्फेक्शन, स्किन कंडीशन इज गुड, the hydration status is better, the nutritional status is better, sucking needs are satisfied, and eliminated the risk of infection transmission, okay. Complications are dehydration because of excessive loss of fluid and minerals, kidney failure can be there, acid base balance with acidosis can occur, and shock due to less availability of fluids, okay. तो शॉक में हम लोग वन ऑफ द टाइप ऑफ शॉक इज हाइपोवोलेमिक शॉक, तो बच्चा शॉक में भी जा सकता है, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। हैव टेकन द क्लास वेरी फास्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ इट वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।